Hello and welcome back to Hitting 100. This is Neha Anil Krishna, your trainer on this channel. So last lecture में हमने क्या पढ़ लिया था? We had studied the basics of right angle triangle. We had studied the angle sum property of a triangle. We had studied the trigonometric ratios, trigonometric identities. Now in this lecture we are going to study the applications of trigonometry. Okay, so let's start. So applications of trigonometry में basically what type of questions are you going to get? You will be given some situations like there is a building or there is a tower, there is a pole. ठीक है? So first thing what you have to remember is So the first thing that you have to remember is the building or any structure, ठीक है, will be perpendicular to the ground. All right? Remember this thing. Like if you are given a building और वो बिल्डिंग के टेरेस से कोई someone is looking down, ठीक है, अब कौन कहाँ लुक कर रहा है दैट वी विल सी लेटर. अभी बस ध्यान दो बिल्डिंग पे. दिस इज अ ग्राउंड, सो लेट ए बी द बिल्डिंग. ठीक है, और मैंने क्या बोला? ए बी आई मीन द बिल्डिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. कोई पोल है, कोई टॉवर है, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. तो ए बी यहाँ पे बी जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. Second important thing that you have to remember is the angle of elevation. Third important thing is angle of depression. All right. Angle of elevation तब यूज होता है when you are looking upward, when any person is looking upward. ठीक है, and angle of depression हम तब यूज करेंगे when a person is looking downward. Okay, so in this figure roughly अगर मैं बताऊं, if this is the top of the building और हमें बोला है that A is looking at point C. Okay, so we will join A and C. Now ये बन गया एक right angle triangle. अब A नीचे देख रहा है, correct? So what will be used? Angle of depression. अब angle of depression यहां नहीं बनेगा, जहां मैंने point लगाया है ना वहां नहीं बनेगा. You have to visualize a line here, imaginary line. और इस imaginary horizontal line जो कि ground से parallel है, that line and hypotenuse के बीच में जो angle है that is the angle of depression. मैं वापस बता रही हूँ, हाइपोटेन्यूस और वो स्ट्रक्चर के बीच का एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक मेड बाय मेनी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो और आपका जो हाइपोटेन्यूस है या फिर लाइन ऑफ विजन है, ठीक है, उसके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ लेट्स कंसिडर अनदर केस जहां पे बोला गया है दैट C इज लुकिंग अपवर्ड. C ऊपर देख रहा है, A इज लुकिंग एट A. ठीक है, सो C A को देख रहा है, दैट्स वाई अगेन हम A और C को ज्वाइन करेंगे. यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है. नाउ यहाँ पे क्या यूज होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. सो हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी ग्राउंड और लाइन ऑफ विजन के बीच का एंगल. यहाँ पे कुछ भी अलग से इमेजिन नहीं करना है. सो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. एंगल ऑफ एलिवेशन गेस करना बहुत ईजी है. लेट्स टेक वन मोर डायग्राम. ये जो लाइन है इसी को आप ग्राउंड मान लो. ओके, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा है PQ.
ठीक है, P is looking at R. तो what will be the angle of depression? हम एक imaginary line यहाँ पे निकालेंगे और इसके और विजन के बीच में जो है that is angle of depression. मान लो यहाँ पर एक बंदा है S. He is looking at P. ये straight line होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, if he is looking at P, that time the angle of elevation will be this. Okay, that's it with the basic part of angle of elevation and depression. बाकी आप समझ जाओगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ दीज थिंग्स रिमेंबर. इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके बाद हाउ टू सॉल्व या फिर व्हाट ऑल थिंग्स आर needed to be revised for prove the following type problems. Now let's move on to the ratios के बीच का relation. अब बात करते हैं relations की. So let me write down once again. What was sine of any angle? Sine theta was opposite upon hypotenuse. Cos theta होता है adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is opposite upon adjacent. फिर आता है कोसेक. कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट. सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट. एंड कॉट थीटा इज क्या होता है भाई? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. ऑल राइट, तो अभी आप नोटिस करिए साइन और कोसेक को उल्टा दिख रहा है. इसका साइन का अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस है, कोसेक का हाइपोटेन्यूस अपन अपोजिट है. इसका मतलब फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. उल्टा भी लिख सकते, वी कैन राइट दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, नाउ यू ऑब्जर्व कॉस एंड सेक. कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक इज हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट. सो सेकेंड रिलेशन जो आपको याद रखना है दैट इज कॉस थीटा is equal to 1 upon sec theta. All right. Now notice one more thing. कौन सा कलर ले? पिंक कलर लेते हैं. Tan and cot. Tan is opposite upon adjacent, but cot is adjacent upon opposite. So third thing is tan theta is equal to 1 upon cot theta. और दो बातें आपको नोटिस करनी है. If I divide sin by cos, sin upon cos अगर कर दो तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? If I do sin upon cos, तो opposite upon hypotenuse sin का and adjacent upon hypotenuse of cos. H and H will get cancelled. Opposite upon adjacent बचेगा, right? And what is opposite upon adjacent? Opposite upon adjacent is tan, correct? So what I can say that, we can say that sin theta upon cos theta is equal to tan theta, correct? Also tan theta क्या है बच्चों? Tan theta is 1 upon cot theta. So what we can say is sin theta upon cos theta is also equal to 1 upon cot theta. ठीक है, ये इतना याद नहीं रखा तो भी चलेगा. रिमेंबर दिस. लास्ट थिंग इज अगर मैं cos अपॉन साइन करूं, cos is what? Adjacent upon hypotenuse, and sin is what? Opposite upon hypotenuse. Again h and h will get cancelled. What is left? Adjacent upon opposite. Adjacent upon opposite कहाँ पे दिख रहा है? Here, cot. So we can say that cos theta upon sin theta is equal to cot theta. Also हमें पता है again by this third relation that cot is 1 upon tan.
अगर tan 1 अपॉन कॉट है तो कॉट होता है 1 अपॉन tan, applies to all the three. So I can write cos theta upon sin theta is equal to 1 upon tan theta. यहां पर भी मैं वही कहूंगी, इफ यू डोंट रिमेंबर दीज टू थिंग्स इट्स ओके, ये दोनों जरूर याद रखना. हाँ, अब इनका रेसिप्रोकल रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, लिख ही देती हूं मैं. साइन इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कैन बी 1 अपॉन साइन थीटा. सिमिलरली सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा विल बी 1 अपॉन टैन थीटा. ठीक है, ये 3 याद हो गए तो ये डेफिनेटली याद रहेंगे, बहुत इजी है. सो जो 5 चीजें आपको याद रखनी है आर दीज 5. ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रूव द फॉलोइंग टाइप प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड. ऑल राइट, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. So the most awaited part is here, prove the following. ठीक है, अब ये prove the following के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स याद होना आर इम्पॉर्टेंट, वो मैं अभी पहले बता रही हूँ. लेट मी क्लियर, इस लेक्चर में अभी जो अपना सेकंड लेक्चर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ये सब रिवाइज करोगे एंड यू विल बी रेडी विद द फॉर्मूलाज. ठीक है, कुछ फॉर्मूला मैं दूंगी, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे. ठीक है, सो वर्क अपॉन इट. एक बार वो कर लिया, so the prove the following part will be very important for you, very easy for you. All right, okay. So first thing that you have to remember is trigonometric ratios सारे. ठीक है, क्या क्या है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सारे किसका क्या रिलेशन है सब आपको याद रखना है. सेकेंड थिंग, उनके रिलेशंस जो अभी हमने अभी जो पढ़े, sin is 1 upon cosec, tan is sin upon cos, cot is cos upon sin, all these things. All right, उसके बाद you have to remember the 3 trigonometric identities, very important. And then you have to remember, अभी थोड़ा flashback में जाएंगे, you have to remember the algebraic identities. क्या होती है algebraic identities जो हमने बचपन में पढ़ी है, बचपन में मतलब 7th 8th क्लास में. Which all algebraic identities are important as far as these questions are concerned is a plus b whole square, जो होता है a square plus 2ab plus b square. फिर a minus b whole square होता है, that is a square minus 2ab plus b square. Then a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b. ऑल राइट, अभी आपको फाइंड करना है व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब. नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ये सब पढ़ के आओगे, व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, इफ यू आर थरो विथ ऑल दिस थिंग्स, प्रूव द फॉलोइंग में बस आपको ऑन टाइम डिसाइड करना है, गेस करना है रादर, कि अभी मुझे इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला या फिर कौन सा वाला थ्योरी अप्लाई करना है. बस ये लर्न करो और नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाओ कि कैसे गेस करना है कि व्हाट टू अप्लाई. ये दोनों चीजें अगर आ गई देन प्रूव द फॉलोइंग इज वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आपको ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, रिलेशंस याद रखने हैं, रेशियोज याद रखने हैं. तो कल के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू do problems based on applications of trigonometry. We are going to do prove the following wala problems. And yes, one more thing, find all the trigonometric ratios type problems aate hain, that also we are going to study in next lecture. ठीक है,
ये 3 टॉपिक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो सी यू टुमारो. तब तक के लिए stay safe, take care, and keep studying.